بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ گوتم بدھ کون تھے۔ کیا گوتم بدھ کوئی نبی تھے؟ اور ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گوتم بدھ نے کیا پیش گوئی کی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ گوتم بدھ کے مذہب بدھ کے پیروکار دو چادر والے کپڑے کیوں پہنتے ہیں اور پوری دنیا میں بھیک کیوں مانگتے ہیں۔ اس مذہب میں گوشت کھانا کیوں حرام ہے۔ یہ مذہب دنیا کا اتنا بڑا مذہب کیسے بن گیا۔ ناظرین، یہ پورا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 500 سال پہلے بدھ مت کے معنی گوتم بدھ، ان کا اصل نام سدھارتھ یا ساکیہ منی تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی شہزادوں کی طرح گزاری۔ ان کے پیدائش کے وقت نجومیوں نے کہا اگر انہوں نے بڑے ہو کر دنیا کی مصائب کا مشاہدہ کر لیا تو وہ رہبانیت اختیار کریں گے، اگر انہوں نے مصائب کا مشاہدہ نہ کیا تو وہ بادشاہ بنیں گے۔ گوتم بدھ کے والد نے یہ بات سن کر اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ مصائب و آلام سے واقفیت حاصل نہ کر سکیں، اور پھر گوتم بدھ کی توجہ عیش و عشرت کی طرف مائل کرنے کے لیے زبردست انتظامات کیے گئے۔ انہیں محل میں ہی تمام آشائشیں دی گئی تاکہ وہ دنیاوی مصائب سے بے خبر رہیں، مگر ایک دن ان سب کے باوجود انہوں نے حقیقت جان لی۔ گوتم بدھ نے ایک بوڑھا دیکھا جس کی کمزوری کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی تھی اور کمزوری کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا محال تھا، اور پھر ایک لاش بھی دیکھی جس کے ارد گرد بچے اور بوڑھے ماتم کر رہے ہیں۔ پھر ایک مریض دیکھا جو درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ غرض یہ سب کو دیکھ کر دنیا کی حقیقت گوتم بدھ پر کھل گئی کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی آشائشوں سے بھی کوئی دلی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو الوداع کر کے درویشانہ طریقہ اختیار کر لیا۔ حق کی تلاش میں وہ بیابانوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے، کیونکہ ان کی ابتدا ہندو طرز معاشرت پر ہوئی تھی، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہندو مذہب میں ہی سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں اونچ نیچ ذات پات کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیا اور وہ سچائی پانے سے قاصر رہے۔ آخرکار انہوں نے اپنے چیلوں سے کہا کہ میں نے یہ مان لیا ہے کہ حقیقت کی تلاش اور ریاضت بیکار ہے، اس لیے تم اس سے پرہیز کرنا۔ لہٰذا گوتم بدھ نے خود آگاہی شروع کی۔ اس دوران وہ پیپل کے نیچے بیٹھ گئے، کئی فاقے اور شعوتیں برداشت کی، بالآخر بدھی یعنی روحانی روشنی حاصل کر لی، جس وجہ سے انہیں بدھ کہا جانے لگا۔ کیونکہ ان کے قبیلے کا نام بدھ تھا، اس لیے عام طور پر انہیں گوتم بدھ کہا جاتا ہے۔ گوتم بدھ نے جس مذہب کی تبلیغ دی اس میں دیوی دیوتاؤں کے پوجا کا حکم نہ تھا، اس میں ہندوانہ عقیدوں کی شدید مخالفت ہوئی۔ ہندو مذہب سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ناظرین، بدھ مت میں توبہ اور کفارہ کا سرے سے ہی تصور نہیں ہے اور نہ ہی گنجائش ہے۔ ان کے نزدیک اگر گناہ کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی بھگتی جا سکتی ہے، بلکہ بدھ مذہب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے۔ بدھ مذہب میں عبادات اور اعتقاد کا کوئی خاص مقام نہیں اور نہ ہی نجات کا کوئی واضح عقیدہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ خدا کے وجود کا منکر تھا، مگر اس کی بھی اصل کچھ نہیں ہے، کیونکہ گوتم نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا کے منصب پر فائز ہے یا اپنے پیروکاروں کے لیے نجات دہندہ ہے۔ بدھ مت میں خدا کی ذات اور صفات کے متعلق خاص نشاندہی نہیں ملتی تھی۔ البتہ جب مدتوں بعد بدھ مت کے پیروکار میں اختلاف ہوا تو کئی نظریات نے جنم لیا۔ بدھ مت دو بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک تصور تو یہ تھا کہ ہر کام اپنے مقصد اور ضرورت کے لیے دیوی اور دیوتاؤں کا اپنا اپنا مخصوص دائرہ اختیار ہے، یعنی ہندو مت کے قدیم دیوی دیوتاؤں کا تصرف تھا۔ دوسرا تصور خدا کے بارے میں یہ تھا تمام طاقتوں اور فیض کا سرچشمہ وہی ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک بھی ہے۔ ایک دوسرا فرقہ جس نے یہ تبلیغ دی کہ خدا بدھ کی صورت میں ظاہر ہوا، یہ نظریہ بدھ کی تعلیمات کے منافی ہے، مگر اس کے پیروکار نے ان تعلیمات نے فراموش کر دیا۔ بدھ مت کی سب سے بڑی کمزوری عبودیت کی ہے، کیونکہ اس میں خدا کی عبادت کا تصور کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ایک بشر کے لیے خدا کی عبادت کے بغیر
बगैर तस्कीन मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी खामी थी जो बुद्ध मत के इब्तिदाई दौर में रही, क्योंकि ना तो उसमें देवी देवताओं के पूजने की इजाजत थी और ना खुदा की इबादत के आसार दिखाई देते हैं। शायद यही वजह थी बुद्ध मत के पैरोकार गौतम बुद्ध का मुजस्समा बनाकर उसकी परस्तिश में लग गए थे ताकि दिलों को तस्कीन हासिल हो। नाज़रीन, बुद्ध के मानी अहले बसीरत के हैं और गौतम बुद्ध ही बुद्ध मत का मानी है, जो दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है। 483 कबले मसीह में अपनी वफात के साल तक गौतम बुद्ध अपने हजारों पैरोकार बना चुका था। हर चंद उसके अफकार तब लिखे नहीं गए थे। उसके चेलों ने उसका हर्फ हर्फ याद रखा। ये हरुफ नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पे ही सीना व सीना मुंतकिल होते रहे। गौतम की वफात के बाद ये नया मजहब 1 साल तक जरा सुस्त रफ्तारी से फैला। 3वीं सदी कबले मसीह शहंशाह अशोक ने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। उसकी बुद्ध मत बनाई से हिंदुस्तान में बुद्ध मत के असरात तेजी से फैले। बुद्ध मत हिंदुस्तान से बाहर भी मकबूल हुआ। ये जुनूब में सैलून तक फैला और मशरिक में बर्मा तक। वहाँ से बढ़कर जुनूबी एशिया में उसने अपने कदम जमाए और मलाया तक फैला, फिर आगे इलाके में सरायत कर गया, जिसे अब इंडोनेशियन कहा जाता है। बुद्ध मत के असरात शिमाली इलाके में भी मुंतकिल हुए। ये तिब्बत पहुंचा, आगे शिमाल की तरफ अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक उसके पैरोकार फैल गए। उसने चीन में भी जगह बनाई जहां उसे बड़ी पजीराई मिली। यहाँ से आगे जापान और कोरिया में उसने अपने पैरोकार पैदा किए। लेकिन हिंदुस्तान में ही ये मजहब 500 ईस्वी के बाद तनज़्ज़ुल का शिकार होने लगा और 1200 ईस्वी तक ये सिमट कर बहुत मुख्तसर तबके तक बाकी रह गया। दूसरी तरफ चीन और जापान में एक बड़े मजहब की हैसियत में मौजूद रहा। जुनूबी एशिया में कई सदियों तक उसकी अहमियत में चंदा तकफीफ ना हुई। बुद्ध की मौत के कई सदियों बाद भी उसकी तालीमात को ज़ाब्ता-ए तहरीर में नहीं लाया गया। कुदरती तौर पर ये मुख्तलिफ मसालिक में मुनक़सिम होने लगा। इसकी 2 शाखें अहम हैं। थरबेद, जो जुनूबी एशिया में मकबूल है और इसे मगरिबी तालीमा बुद्ध की हकीकी तालीमात को करीब मानते हैं। दूसरी शाख महायाना कहलाती है, जिसके पैरोकार तिब्बत, चीन और शुमाली एशिया में अक्सरियत में है। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है और उनके मानने वालों की तादाद तकरीबन 500 मिलियन है, जो दुनिया की कुल आबादी का 5.5% है। एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया का चौथा बड़ा मजहब है। बुद्ध मत एक ऐसा मजहब है जो मुख्तलिफ रिवायात और अकायद और तर्ज अमल को मोहित किए हुए है, जिसकी बुनियाद गौतम बुद्ध ने रखी। गौतम बुद्ध के मानने वालों पर फर्ज है कि वो तमाम जिंदगी सिर्फ 2 कपड़ों में बसर करें। उस वक्त से जो गौतम बुद्ध पर ईमान लाए वो सिर्फ 2 कपड़े पहनने लगे। आज भी बुद्ध मत के पैरोकार पेशवा हमारे मिलते जुलते एहराम में मलूस नजर आते हैं। अलबत्ता आम बुद्ध के पैरोकार अपने रिवायती लिबास पहनते हैं। गौतम बुद्ध के मजहब में किसी चीज को मारना हराम था। इंसान किसी जानदार की जान नहीं ले सकता था, यहाँ तक कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी। गौतम बुद्ध के पैरोकार में भी आज भी किसी किस्म का गोश्त खाना हराम है। ये लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं और वेजिटेरियन कहलाते हैं। नाज़रीन, गौतम बुद्ध के पैरोकारों को मना है कि वो पेट की खातिर कोई पेशा इख्तियार नहीं करेंगे। उनको हिदायत दी, अगर भूख लगे तो भीख मांग लो। इसी वजह से गौतम बुद्ध के पैरोकारों को बुद्ध बख्शु भी कहा जाता है। आज भी सदियां गुजर जाने के बाद जो लोग बुद्ध मत के पेशवा और साधु बन जाते हैं वो कोई काम नहीं करते, मांग कर खाते हैं, लेकिन आम बुद्ध काम करते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि गौतम बुद्ध ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पेशगोई की थी। नाज़रीन, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले तमाम अंबियाओं ने आखिरी नबी के आने की बशारत दी, और जब गौतम बुद्ध का आखिरी वक्त आया उसके शागिर्द जिसका नाम नेंदा था उसके पास खड़ा होकर रोने लगा जब आंसू उसके पाँव पर गिरे। उसके बाद गौतम बुद्ध की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, क्यों रोते हो? उसने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि आपके बाद हमें सच्चाई की तालीम कौन देगा। नाज़रीन, मौरखीन लिखते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा, ए नेंदा, मैं पहला नहीं हूँ जो जमीन पर पैगंबर बनकर आया, ना मैं आखिरी हूँ, बल्कि अपने वक्त पर दुनिया में आखिरी पैगंबर और आएगा जो मुकद्दस मुनव्वर कल्ब और अमल में दानाई से लबरेज होगा, मुबारक होगा, आलम कायनात होगा, इंसानों का
हादिम नजीम और सरदार होगा। वो एक मुकम्मल खालिस निज़ामी जिंदगी की तबलीग करेगा। नेंदा ने पूछा, हम उसको किस तरह पहचानेंगे? तो नाज़रीन, गौतम बुद्ध ने बड़ी खूबसूरत पहचान बताई। आखिरी नबी सबसे हसीनो जमील होगा और वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आएगा। गौतम बुद्ध हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले पैदा हुआ। बाज़ मौरिखीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1.25 लाख पैगंबर मबूस फरमाए। तो गुमान होता है कि गौतम बुद्ध भी अल्लाह के नबी या बरगुज़ीदा वली गुजरे हैं और अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी अल्लाह का मुंतखब किया हुआ कोई इंसान ही दे सकता है। गौतम ने खुद को खुदा या किसी किस्म की इलाही हस्ती खुद को गुमान नहीं किया था, बल्कि उसने अपने आप को दूसरों को राह दिखाने वाला समझा था। ऐसा सिर्फ बुद्ध की मौत के बाद हुआ था कि उसके पैरोकार ने उसको देवता के ओहदे पर फाइज कर दिया। बुद्ध मत के तमाम पैरोकार उसकी तरह नहीं देखते, बल्कि 4 अजीम सच्चाइयाँ बुद्ध मत की बुनियादी तरीन अकायद है। रिवायत के मुताबिक गौतम बुद्ध के रोशन ख्याली जागत आगाही बुद्धि के उसूल के बाद पहला पैगाम उन तसव्वुरात का बयान था। बुद्ध मत के सोच के मुताबिक इन ख्यालात पर यकीन करना इतना अहम नहीं जितना कि उन पर तजुर्बा करना अहम है। पुनर्जन्म यानी कि संसारा और निर्वाण के यकीन के साथ साथ 4 अजीम सच्चाइयाँ बुद्ध मत की तकरीबन तमाम अक़साम की सोच को तश्कील देती है। मुख्तसरन ये 4 तसव्वुरात दुख और तकलीफ की हकीकत, दुनिया की नापायदारी, ख्वाहिश नफसानी पर हासिल होने वाली आज़ादी और हश्त 8 पहलू रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। पहली अजीम सच्चाई, जिसे दुखा का उसूल भी कहा जाता है, ये बयान करती है कि ज़िंदगी दुख ही दुख है। अंग्रेजी में इस्लाह उलझन का बाइस बन सकती है, क्योंकि बुद्ध मत ये दावा नहीं करता कि तमाम तजुर्बात नाखुशगवार हैं। दुखा का तसव्वुर बहुत ज़्यादा लतीफ़ है, जो इस्तराब, मायूसी, अदब, इत्मीनान जैसे ख्यालात तसव्वुर करता है। ये बुद्ध मत का बुनियादी अकीदा है और दीगर तमाम अकायद और आमाल का नज़र इस पायरी सच्चाई पर है। बुद्ध मत के पैरोकारों का ख्याल है कि दुखा इस बात की वजाहत करता है कि बनी नू इंसान में क्या खराबी है, यानी गलत ख्वाहिशात, खास तौर पर आर्जी ख्वाहिशात से मिलने वाला दुख। इस मसले की वजह दूसरी सच्चाई के अंदर की गई है। बुद्ध मत की दूसरी सच्चाई, जैसे अनिका, नापायदारी या तन्हा ख्वाहिश भी कहा जाता है, कि कायनात में कोई भी चीज मुस्तकिल या मुतगय्यर नहीं है। दर हकीकत नफ्स भी मुस्तकिल या मुतगय्यर नहीं है। ये बुद्ध मत की वजाहत है कि बनी नू इंसान जैसे है वैसे ही क्यों है, क्योंकि मसाइल गैर मुस्तकिल चीजों की वजह से होते हैं। तमाम ख्वाहिशात बिल आखिर उसी दुखों का बाइस बनती है। यहाँ तक कि अच्छी ख्वाहिशात भी पुनर्जन्म और दुखा के चक्कर को दवाम बख्शती हैं। इस पर काबू पाने के लिए तीसरी अजीम सच्चाई को समझना जरूरी होगा। तीसरी अजीम सच्चाई बयान करती है दुख और मौत पुनर्जन्म से आज़ाद होने का वाहिद तरीका वक्ती तौर पर ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। बुद्ध मत इस सवाल के जवाब के तौर पर देखता है, बनी नू इंसान के साथ जो गलत मसला दरपेश है उसे हम कैसे दुरुस्त करें। अमली तौर पर तमाम ख्वाहिशात, अच्छी, बुरी और दूसरी तमाम ख्वाहिशात का ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। उसको ख़त्म करने के ज़राइब चौथी अजीम सच्चाई के अंदर पाए जाते हैं। चौथी अजीम सच्चाई ये है, अजीम हश्त बामानी 8 पहलू रास्ते पर चलने से ख्वाहिश ख़त्म हो सकती है। बुद्ध मत का बनी नू इंसान के अंदर खामियों का मंसूबा यहाँ पर पाया जाता है। अजीम हश्त रास्ते की तारीख, सही इल्म व अकीदा, सही इरादा, सही कलाम, सही अमल, सही रोजी रोटी, सही कोशिश, सही आगाही, सही मुराकबे के तौर पर बुद्ध मत के मुताबिक कोई भी शख्स 4 अजीम सच्चाइयों का इतलाक करके और अजीम हश्त पहलू रास्ते को इख्तियार करके पुनर्जन्म, दुख और दुखा के रास्ते को ख़त्म कर सकता है। ये बात किसी ऐसे शख्स की हालत की तरफ रहनुमाई करेगी जिसमें हर तरह की ख्वाहिश, तलब, इन्हिसार, मायूसी को मुकम्मल तौर पर छोड़ सकता है। जब कुछ भी नहीं ये हालत हासिल हो जाए तो उसे निर्माण कहा जाता है और ये बुद्ध मत की तरफ से फिरदौस का मुतबादिल है। जो शख्स निर्माण हासिल कर लेता है वो एक फर्द के तौर पर अपना वजूद खत्म कर देता है, दोबारा पुनर्जन्म और मौत के संसारा को रोक देता है। ज्यादातर आलमी नजर
रखने वाले, हर एक चीज मुकम्मल रखने वाले, बाइबल की तालीमात से मुतसादिम नहीं है। गलत ख्वाहिशात और गुस्सा गुनाहों का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस वक्त गौतम बुद्ध के मानने वाले पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में मौजूद है। अगरचे ये मजहब हजारों साल पहले मंसूख हो चुका है और अब दुनिया में एक ही सच्चा बेहतरीन मजहब है जिसे इस्लाम कहते हैं। और मजहब इस्लाम ने पिछली तमाम शरीयतों को और तमाम मज़ाहिब को ख़त्म कर दिया और इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम ही इंसानों की तमाम निजात का और कामयाबी का जरिया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर ही जिंदा रखे और जब हमारी मौत हो तो कामिल इस्लाम कामिल ईमान पर ही हो। आमीन।